Good evening to each and every one of you. आज होपफुली सब कुछ टाइम के अनुसार जाएगा एंड देयर विल बी नो डिले. एटलीस्ट शुरुआत तो अच्छी हो गई है. होपिंग ऑल ऑफ यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. कुछ ऐसा वैसा होगा एज फार एज योर हेल्थ इज कंसर्न. आई हैव बीन टेलिंग ऑल माय बैचेस, टेक रेस्ट. ओके, घर ही पे हो, दूर तो कभी जाना नहीं है. यस, डू टेक एडुकेट रेस्ट, गेट फिट, गेट फाइन, देन यू कैन गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर्स. यू मिस आउट एनी लेक्चर्स, कोई गम की बात नहीं है. लेक्चर्स का भी घूमने को भी जाते नहीं है. ओके, उनका भी एक ही सोर्स है, विच इज यूट्यूब. वहां पे हमेशा 365 days a year, 24 hours of the day, it is going to be available. If you have any friends, any cousins, any brothers and sisters, those of you who passed out 10th standard, okay, because they were anxious lot, they were an anxious lot because there was a lot of confusion. If they passed out, marks कुछ भी आया होगा, percentage कुछ भी आया होगा, but if they passed out, do congratulate them, okay, and congratulations to you also if you are somebody quite close to them. हाँ, connected to them. क्यों बात किया, क्यों बात छेड़ा मैंने, connected to them. अगर वो कॉमर्स ले रहे हैं अगले साल, okay, so admissions for accountancy subject, bookkeeping and accountancy, okay, is on, okay, शुरू है, start है, चालू है on this particular channel. So 11th standard, 12th standard, 13, 14, 15th, okay, ये जो पंजा है सो टू से, जो रिप्रेजेंट करता है आपका अलग अलग स्टैंडर्ड. एडमिशंस फॉर ऑल द डिविजन्स आर ऑन, सो डू कीप दैट इन माइंड. देयर इज एन ईमेल आईडी, आई थिंक सो अबाउ माय हेड होना तो चाहिए. ओके, सो वो ईमेल आईडी आप प्रोवाइड कर सकते हो जिनको भी हमें कांटेक्ट करना है, ताकि उन लोगों को ये जो ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस, आई वुड यूज दैट वर्ड इंटरैक्टिव. देयर आर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस बट वो नॉट नेसेसरली इंटरैक्टिव होते हैं. ओके, this style makes it interactive. Okay, this is all the YouTube giri that I have to be telling you. I have to be reminding you कि लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली कर देना. सब्सक्राइब आपने किया है, आपके दोस्तों को बता दो. लाइक लेक्चर समझ में आया, अंडरस्टैंड किया तो लेक्चर के बाद में जरूर कर लेना. ओके, एक रिक्वेस्ट है. ओके, जस्ट अ रिक्वेस्ट, वेरी वेरी सिली. When I come, when you come, okay, if you can maybe, okay, hello sir, okay, good evening, I know बहुत लंबा हो जाएगा but hello बोल दो. So what happens is ना, वो कमेंट बॉक्स में कुछ तो आता है, by which I know उस तरफ पे वैक्यूम नहीं है. okay, and I am not talking हवे में, actually किसी के कान में तो जा रहा है. So that's the only purpose of it. So let that good wishes not only be from my end, बट अगर वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा देन सोने पे सुहागा हो जाएगा. ओके, जाते जाते टाटा बोल के जाना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं. ओके, आई होप यू डोंट माइंड. ओके, आई नो बड़े हो चुके हो, आजकल थोड़ा शर्म लगता है किसी को हाय बाय बोलने में, मतलब to the professor, not to the friends, not to the friends. Okay, so if you can write a coming message when you join and a going message when you leave, so I know you were there at the coming as well as at the going. In between, the attendance takes care of that. Okay, that's pretty much it. Not for the lecture.
as far as the non-lecture items are concerned. Now, starting with the lecture, we were doing piecemeal distribution. We still are doing piecemeal distribution. आज इक्का दुक्का तिक्का कुछ नया पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे. मैथ्स पे, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि उसके अलावा ये चैप्टर में है क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. बट यस, मैंने से है क्या, ओके, जो है उसमें बारीकी से कैलकुलेशन करना चाहिए, so that you don't miss out anything, because you miss out one item छोड़ो, दूर की बात है, you miss out 1 rupee, उसके बाद सब कुछ तहस नहस. Okay, the entire sum goes for a toss. So I do see some hellos. So again, hello to each and every one of you. If you join in after 5 minutes, good evening to you, and I hope your remaining day goes perfectly fine. मेरा मुखड़ा हटा देता हूं. I will show you the mukhada of the question today. This is what it looks like. This is what we are solving fully. I'll keep the lecture style the same. I will solve one sum fully with you, and the next one partly I will solve with you. Okay, so the remaining part मैं आपको as homework दे दूंगा. Question 14, which is on your screen, reads the following. Lal Singh, Santa Singh and Banta Singh. Okay, no kidding, no joke, serious question hai. Were in partnership, sharing profits in the ratio of. Now, I've got to click on this. Reason, it is 1/2, 1/4, 1/4. It's very minute, I understand that. But 1/2, 1/4, 1/4 काम नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि उसका डिनोमिनेटर अलग है. तो फिर क्या कर सकते हैं? लेट्स सी, उसका डिनोमिनेटर हम सेम कर देते हैं. कैसे करें? बाकी का क्वेश्चन पूरा मैं बाद में पढ़ता हूं. ओके, मैं वापस आऊंगा. अभी के लिए आपके नोटबुक्स में जहां पर भी आपके पास जगह है, वेर एवर यू हैव द रिक्वायर्ड स्पेस, मे बी 5 लाइन 6 लाइन जो मैं बता रहा हूं, प्लीज कॉपी कर लेना. व्हाट आर वी डूइंग? हमको रेशियो के साथ थोड़ी कंप्लेन है. रेशियो का डिनोमिनेटर सेम नहीं है. पहला है 1/2, बाद में है 1/4, 1/4. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू. दिस इज आवर रेशियो, विच आई रिपीट ना, कंप्लेन है. सो व्हाट डू वी डू? वी हैव टू फाइंड आउट अ रेशियो वेयर द डिनोमिनेटर इज द सेम. इट कैन नॉट बी 2 and 4 and 4. डिनोमिनेटर. अच्छा, कैसे ये कन्वर्जन करें? ऑल ऑफ यू, ओके, गर्ल्स, बॉयज, स्टूडेंट्स, ये कन्वर्जन कैसे करें? वेल, जो हाईएस्ट डिनोमिनेटर है, इट्स नॉट अ बिग डील बाबा, आपको कोई बड़ा साइंस जानने का जरूरत नहीं. द हाईएस्ट डिनोमिनेटर इज 4. तो उसको थोड़े डिस्टेंस पे आप लिख दो, इक्वल टू अपॉन 4, इक्वल टू अपॉन 4, इक्वल टू अपॉन 4. एंड नाउ यू मल्टीप्लाई विथ, आई डोंट नो, डिपेंड्स अपॉन द टेबल, कि मेरे को ना ये 4 कैसे मिलेगा. एग्जाम्पल, okay, so 2 multiply by how much is going to be 4? 2 multiply by how much? Very simple and very kiddish question that I'm asking. 2 2s are 4. अच्छा, तूने नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा. 2 मत लिखना, मतलब मल्टीप्लीकेशन करके आंसर लिखना. सो 1 2s are 2. तो पहला आ गया 2/4. वेरी सिंपल, हाँ. बट येस, इफ द रेशियो इज रॉन्ग, देन वेरी सिंपल, तुम्हारा पूरा सम रॉन्ग है. देयरफॉर, इवन दो सिंपल, टेक इट सीरियसली. ओके, सो सिंपल, सीरियसली. यहां पे क्या करने का? 4 and 4 का रिश्ता क्या है? मल्टीप्लाई बाय 1. मल्टीप्लाई बाय 1, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 1 करेगा. ऊपर 1 1s are 1. So 2/4, 1/4. And the third is the same. Third is the same. 4 multiplied by 1 is 4. So ऊपर भी multiply by 1 is 1. So what did you get? 2/4, 1/4, 1/4. It is simple, but still आपको ये समझा? Can you please use the comment box for writing understood? I'll take the story ahead. Comment box. If understood, then you write.
फोर्स नहीं कर रहा हूँ, फोर्स कर नहीं सकता हूँ मैं, ओके, बट यस, आपके सुंदर चेहरे में देख नहीं सकता हूँ ना, वरना नॉर्मली एज ए टीचर व्हेन आई लुक एट माय स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, ओके, तो इतना तो समझ में आ जाता है कि भाई समझा बंदे को कि नहीं समझा. Okay, so keep this in mind. Our ratio today is 2 upon 4, 1 upon 4, 1 upon 4. Meaning 2 is to 1 is to 1. 2 is to 1 is to 1. Now, ये हम क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं बाकी का. So it said, their balance sheet as on 31st December 19 was as under. एक इनकम टैक्स पेएबल है, एक लोन फ्रॉम बैंक है, एक क्रेडिटर है, एक लोन फ्रॉम संटा सिंह. Now, what is the difference in this loan, this loan? Loan from bank is external loan. Loan from Santa Singh is internal loan. Keep these words in mind, huh? External, internal. And then there are capitals. Meaning, everyone, there is no reserve today. So, ye sum mein don't do chinta of reserve. How many people do I have to pay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That means your format is 2 plus 7. I repeat, your format is 2 plus 7. Okay. Right now, cash में कितना है? 9,000 है. So I repeat, cash में आपके पास 9,000 है. Two things that I will be using for statement of excess capital. See, बाकी का स्टोरी बाद में पढ़ता हूँ. 1, 2, this should be 3. I repeat, it's point number 4, but वो 3 होना चाहिए. Not a problem. उसको हम लोग 3 कंसिडर करके ही ये सॉल्व करेंगे. Okay, so I'm back. Okay, I will do the editing business, but right now what do I want to tell you? ये जो कैपिटल है ना 40 40 30 और जो रेशियो आया 2:1:1, with the help of that we can definitely solve the excess capital. बाकी का स्टोरी मैं बाद में पढ़ता हूं. Do not worry about that. This is how the excess capital statement, like usual, कुछ नया नहीं है, looks. So in the very first line आपको कैपिटल लिखना है, which is the following. This is capital of the balance sheet, huh? Very important. 40,000, 40,000, 30,000. I will wait. I think so 2 मिनट काफी रहेगी. 2 मिनट काफी रहेगी. आप फर्स्ट पे, सेकेंड पे, थर्ड पे ढूंढ लीजिए. I'll wait. Then I will not skip this. Don't worry, I cannot skip this because all of this is programmed. So I will show you the solution. But in the meanwhile, 2 मिनट, ओके, जब तक सो टू से नूडल्स बन जाते हैं, आप फर्स्ट पे, सेकेंड पे, थर्ड पे का आंसर कमेंट बॉक्स में ऑब्वियसली सॉल्व करने के बाद मेरे को बोलिए. ओके, सो देयर विल बी a little bit of a silence for some time till the time, so that I don't disturb you during the time your mind is doing the processing. Okay, so all the best. 2 मिनट के बाद में मिलते हैं. Okay, so I'm back. That took a lot of time but unfortunately the rectification could not be done, but still not a big deal. Right now आपने जो सॉल्व किया और जो इतने आंसर्स आए हैं, okay, 4x speed में I will go ahead with what should be the solution, which is your solution, but I'm just showing it to you. So the profit sharing ratio was 2:1:1. Division gives unit capital. The least unit capital was of Mr. Red Singh, that would be Lal Singh. उसका multiplication करेंगे तो 40,000 आएगा, 20,000 आएगा.
Then comes the excess capital, the first level of excess capital, in which you get nil for Lal Singh, 20,000 and 10,000. So Lal Singh is cross mark. Ratio is 1:1, which is the simplest division. Unit capital आपका आ गया 20,000, 10,000. Division proportionate capital में आप इस टाइम बंटा सिंह जो आपने ऑलरेडी ले लिया है. I am just completing the story. So the ultimate excess is of Santa Singh, the ultimate excess. So this is what you have told me. First pay Santa Singh 10,000, second pay Santa and Banta, which makes sense, okay? 10 and 10,000. And then we will pay all the partners in 2:1:1. Right now, this is completely done. Coming back to the question. Now in the question, आज एक नया पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं. Please definitely ध्यान कंटिन्यू रखना. ओके एवरीवन, ध्यान कंटिन्यू रखना. ओके, सो द सीरीज, अभी सीरीज का मतलब क्या है? फर्स्ट कौन आएगा और सेकेंड कौन आएगा? ओके, सो इनकम टैक्स पेएबल ये कौन सी कैटेगरी में आता है? टिल टुडे यू हैव लर्नड secured liability and unsecured liability. Income tax सरकारी पेमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, सरकारी पेमेंट. सेक्योर्ड अनसेक्योर्ड दोनों नहीं है. उसका एक तीसरा कैटेगरी आता है, उसको कहते हैं प्रिफरेंशियल. सो प्रिफरेंशियल लाइबिलिटी में दो टाइप के आते हैं. इफ यू हैव टू पे द गवर्नमेंट एनी टैक्सेस और एनी ड्यूज, or if you have to pay the workers wages, gratuity, provident fund. I repeat, ये सब कब हो गया था? फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर में मैंने एक टेबल दिया है. ओके, वो कहाँ पे है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप जन्नत में भी बैठो तो फर्स्ट लेक्चर को एक्सेस कर सकते हो, और उसमें जो मैंने स्टेप्स दिए हैं कि किसको कब पेमेंट करना है, वो पूरा हमेशा अवेलेबल है. सो पहला सेक्योर्ड आता है, देन प्रिफरेंशियल, देन अनसेक्योर्ड. टुडे लोन फ्रॉम बैंक, सी ब्रैकेट में कुछ दिया नहीं कि हमने कुछ गिरवी रखा है इनके पास, देयरफॉर ये वाला लोन है अनसेक्योर्ड. क्रेडिटर्स आर ऑलवेज अनसेक्योर्ड. तो ये दोनों लोग भाई भाई है, प्लीज नोटा, भाई बहन जो बोलना है, बहन बहन बोलना है, जो भी बोलना है, बट ये दोनों लोग एक साथ है. एंड जो संटा सिंह का लोन है दैट इज इंटरनल, वो बाद में आएगा. सो सीक्वेंस कैसा होगा? लेट मी शो दिस टू यू. ओके एवरीवन, सीक्वेंस. दिस इज द लुक ऑफ योर सीक्वेंस. नाउ यू हैव टू ऑब्वियसली राइट. तो आई रिपीट माई सेल्फ, प्लीज राइट, क्योंकि आपके कॉलम्स में मैंने तो आपको नहीं बताए थे. ओके, अगर आपने नहीं लिखा है तो अभी लिख लीजिए. पर्टिकुलर्स कैश बैलेंस फिक्स्ड है. यू राइट इनकम टैक्स पेएबल, दैट इज रोल नंबर 1. बैंक लोन क्रेडिटर रोल नंबर 2. संटा सिंह लोन रोल नंबर 3. एंड द कैपिटल्स आर एज पर एक्सेस कैपिटल 444. इफ दिस इज, दैट इज द टाइटल बार आपने लिख लिया, कमेंट बॉक्स में डन कर दो. आई विल मूव ऑन विद द सोल्यूशन, रादर आई विल कंटिन्यू विद द सोल्यूशन. टाइटल बार को कंप्लीट कर लो. अगेन जस्ट टू रिपीट कि सीक्वेंस में पहले secured, today we don't have secured. Okay, after that preferential मतलब सरकारी, government payment and workers payment. Okay, then unsecured. So today we have preferential, then unsecured and internal. Okay, let me go ahead. Now I am writing all the balances for you, so obviously you have to do the same.
कैश बैलेंस 9,000, इनकम टैक्स पेएबल 4,000, बैंक लोन 30,000, 30,000, creditor 15,000, Santa Singh loan 11,000, and then the three capitals. Today it is normal capital, balance sheet. Okay, आज adjusted capital नहीं है. 40, 40, 30. Now, ये I'm guessing आपने लिखा. I'll still wait for a few seconds because I will not ask you कि अपने पास 9,000 है जो है कि किसको पेमेंट करें. ओके, मैं नहीं पूछूंगा. क्यों नहीं पूछूंगा? क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है एंड ऑब्वियसली आपने पूरा क्वेश्चन देखा नहीं है. इतना लिखो एंड देन लेट मी शो यू द क्वेश्चन. इट इज दिस. Now, in the question, after the balance sheet, point 1 says a sum of 3,000 was spent on furniture for getting better price. Now, let me explain that to you, all of you. कोई बड़ा स्टोरी नहीं है. अगर आप एक फर्नीचर, नॉट जस्ट फर्नीचर होगा, मोबाइल होगा. सोचो तुमने मोबाइल यूज किया फॉर 6 months, देन फॉर सम रीजन तुमको अपग्रेड करना है एंड यू वांट टू सेल द मोबाइल. Will you take the mobile जैसे दिखता है वैसे to the showroom? 99% no. तुम थोड़ा काम करेगा. अच्छा, क्या थोड़ा काम करेगा? अगर उसके ऊपर तुमने कोई स्टिकर विकर लगाया है, एग्जाम्पल जस्ट सेइंग स्टिकर, what will you do? You'll try to rub it out. You'll try to make that product जो तुम बेच रहे हो a little neat. थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए. इवन दो सेकेंड हैंड बेच रहा हूं मैं, बिकॉज अगर अच्छा दिखेगा तो ही तो बिकेगा. So I repeat, any businessman क्यों यार, anybody, अगर उसको कोई चीज सेकेंड हैंड में बेचनी है, फर्स्ट हैंड में नक नहीं करना पड़ता. फर्स्ट हैंड में पेटी पैक होता है, बॉक्स पैक होता है, प्लास्टिक लैमिनेट होता है. बट जब सेकेंड हैंड बेचो, यूज किया हुआ चीज, एवरीबडी बोलेगा 2 पैसे तो खर्चे करने पड़ेंगे 10 पैसे कमाने के लिए. सो एट द वेरी बिगिनिंग आपको फर्नीचर को क्या was spent 3,000 for getting a better price. Maybe the furniture was wobbly, उससे आवाज आ रहा था किरी किरी कुरु कुरु, तो थोड़ा उसके ऊपर खर्चा किया ताकि वो अच्छा भाव हमको दे सके. तो जस्ट नोट, आपको 3,000 रुपया खर्चा करना है. जस्ट कीप दैट इन माइंड. देन पॉइंट नंबर 4, वेल आई एम कॉलिंग इट पॉइंट नंबर 4, बट डू कीप दैट इन माइंड. We only have serial number 1, 2 and 3. So estimated realization expense 2,000. अच्छा, उसके बाद का एक्चुअल है, बट देन द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू, दैट इज द रीजन मैंने कहा आई एम नॉट आस्किंग यू द क्वेश्चन कि कैश बैलेंस के साथ क्या करना है. सो लेट मी शो यू कि कैश बैलेंस के साथ करना क्या है. फर्नीचर का 3,000 नंतर, उसके पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस, उसके पहले. सो एवरीबडी प्लीज ज्वाइन मी, मेरे गाड़ी में आ जाओ. 2,000 रुपए पहले आप बाजू में रख लो, खर्चा मत करो. फर्नीचर पे तो खर्चा करना है, ये 2,000 तो पहले मेरे को बाजू में रखना है. आई एम हैविंग 7,000 लेफ्ट विथ मी. आई एम नॉट पेइंग, अभी तक आई एम नॉट पेइंग एनीबडी इन फ्रंट ऑफ मी, because now the point which I tried to explain to you, please do write it if I went a little fast, my apologies for that. Back to the question, because now point 1 आपको ध्यान देना है, which already I explained. 3,000 रुपया खर्चा करना पड़ेगा ताकि फर्नीचर थोड़ा चमचमाता हुआ नजर आए. That's what we are doing. उसका कोई टाइम नहीं है, उसका कोई डेट नहीं है, तो वो बिगिनिंग में ही होता है. ओके, स्पेंट ऑन फर्नीचर रिपेयर 3,000. सो नाउ मैंने 2 चीजों पे कोई ना कोई बहाने से मेरे पैसे कम हो गए. अभी है कितना? 4,000. नाउ आई विल नॉट टेक यू बैक टू द क्वेश्चन, क्योंकि अभी कोई आड़ा टेढ़ा तिरछा चीज नहीं है. अभी ईमानदारी से जो सामने खड़े हैं, ओके,
उनको हमको पैसे बांटने हैं. आई हैव 4,000 विथ मी. कैन यू शॉर्टकट में ही बता दो, whom do I pay, how much do I pay? See, it's the same question. It's the same question that I keep on asking again and again, क्योंकि चैप्टर का मेन एम तो वही है, किसको पैसे दूं, कितने पैसे दूं. रिपीटिंग एंड वेटिंग. आई हैव 4,000 विथ मी. चलो आंसर्स आगे. इनकम टैक्स पहले तो सरकार को दे दो, उनका तो शक्ल ही देखना नहीं हमको. तो वेरी सिंपल है, मैच मैच हो गया ना, क्योंकि उनको देना भी हमको था 4,000 और हमने उनको दिया भी, हमारे पास है भी 4,000. सो लेट मी डू दैट. सो इनकम टैक्स पेड, इट इज पेएबल, अभी पेड हो गया 4,000. सो आई विल पे देम 4,000. उनका डिमांड नील, मेरा जेब नील. आई रिपीट, उनका डिमांड नील, मेरा जेब नील. ओके, आई टेक दिस अहेड. अहेड का मतलब आई हैव टू टेक यू टू द क्वेश्चन दर्शन, बिकॉज अपना जो 9,000 था ना, वो पूरा खाली हो गया. तो अगला हमारा पिग्गी बैंक में पैसा कब आएगा. पॉइंट नंबर 2, अदर एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज. जनवरी में आपको 12,000 आया. सी, यहाँ जैन है, फेब है, मार्च है, अप्रैल में. ओके, काफी लंबी कहानी है. जैन में 12,000. सो दैट इज माई first realization. Well, it's on the 31st of January. The date of the month is not given, so it is assumed to be the last day of the month. Assumed. हाँ, कितना मिला? 12,000. My question वही पुराना वाला, किसको दूं एंड कितना दूं. इफ यू कैन एटलीस्ट किसको का तो आंसर बता दो. कितना का आंसर नहीं बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट किसको दूं. Okay, there is the first answer which is the correct answer, because इनकम टैक्स के पीछे दो लोग खड़े हैं साथ साथ में. ओके, भाई भाई. बैंक लोन क्रेडिटर, बिकॉज बैंक लोन टुडे इज अनसेक्योर्ड. टोटल आई हैव टू गिव देम 45. आई होप द कर्सर इज विजिबल. 45. देन अपने पास 12,000 है, तो ऑब्वियस है यहाँ तुम 45 तो नहीं दे सकते हो. रेशो, द मोमेंट पैसा कम हो जाए, रेशो. सो ऑलरेडी इन योर कमेंट बॉक्स द आंसर इज देयर. 30,000 50,000 is 2:1. 2:1. So I will pay bank loan and creditor. Pay to bank loan and creditor in 2:1. So 12,000 I am paying. Fully 12,000. Now please note that 12 मत लिखना. 2:1. That means 2/3, 1/3. 2/3, 1/3 of 12,000, which is 8,000, 4,000. Now subtract. Nil, 22,000, 11,000. जनवरी का पॉकेट मनी खत्म. अभी दोबारा से मम्मा पापा को कॉल मारना पड़ेगा कि जेब खाली हो गया है, प्लीज हेल्प कर दो. Okay, if that is written after January, I have to take the calendar ahead and I have to show you the next month.
so highlighted that in February we got 15,000, 15,000. Again, end of the month नहीं बताया तो end of the month, and because it is 2020 which is a leap year, 2020 which is a leap year, 29th February, 15,000. Now this time क्वेश्चन अगर पूछूं तो वो रिपीटेशन हो जाएगा कि किसको पैसा दूं, बैंक लोन क्रेडिटर, कितना पैसा दूं. देख, अगर मैं थोड़ा काउंटिंग करूं ना तो 22 and 11, हाँ 22 and 11 is actually 33, उतना तो नहीं है, तो वो ही रहे 22 and 11 is also 2:1. इनफैक्ट स्टार्ट से वो 2:1 ही होगा हमेशा. तो तुम 15,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो. कैन यू प्लीज गिव मी 15,000 का 2/3 1/3 कितना है? 15,000 का 2/3 1/3. As the answer that you just now gave is correct, I will do the same. So paid to bank loan and creditor 2:1 में. रेशो तब तक चलेगा जब तक पैसे कम है. ओके, तो 10,000 5,000, अपना जेब नील, उनका डिमांड थोड़ा कम 12,000 6,000, which is still it will continue to remain in 2:1. भले ही डेसिमल में आ जाए, it will continue to remain in 2:1. So for me and you, January समाप्त, February also समाप्त. आगे well I'm guessing मार्च में कुछ पैसा आना चाहिए. So in March 10,000, in March 10,000. 31st March 2020, third realization 10,000. Can I pay bank loan creditor? Yes, that's not the question. Can I pay them full? No, because you still have to give them 18. 12 plus 6 18. तो क्या करेंगे? रेशो, मजबूरी है, रेशो. अब मुझको 10,000 का 2/3 और 1/3 आपके तरफ से चाहिए. I will repeat, 10,000 का 2/3 और 1/3. प्रीवियस वाला 15,000 आप में से बहुत कम लोगों ने आंसर दिया. So do try to solve on your calculator. I want 10,000, 2/3 and 1/3. If it is in decimals कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप राउंड ऑफ करके बता दो. एक आंसर आ गया है. अगर 2-3 और आंसर अपनी मेहनत से, नॉट कट कॉपी पेस्ट करके, हाँ अपनी मेहनत से. ओके, 2 आंसर्स आ गए तो मैं आगे लेके जाता हूं, क्योंकि आंसर्स मेरे भी वही हैं कि हमको देना तो वही है बैंक लोन और क्रेडिटर को, पर रेशो में देना है जो तीसरी बार है 2:1. पर वो डेसिमल में आता है, कोई गल नहीं. ओके, उसको आप राउंड ऑफ कर दो तो 666 और 3333. ओके, किसी ने मेरे को कभी तो कहा था सर चोबल 3. अब आई रियली डोंट नो चोबल करके वर्ड होता है कि नहीं, बट जो मतलब तो वही है कि भाई 4 बार लिखना है. So now my balance is in my pocket nil. The bank loan I have to still pay is 5,333 and the creditor 2,667. होपफुली इतना तो पैसा आ जाएगा कि ये हम एक साथ में रफा दफा करें.
after March, when is my next month? Well, let me show you the question. April में I am getting 30,000 April में. That's a good amount. Okay, in fact अभी तक का तगड़ा amount है. So that's my fourth realization. 30 April, 30,000. I want same old पुराना पुश्तैनी question. किसको दूं, कितना दूं? ये पूरा चैप्टर यही 2 लाइन में समाया हुआ है. किसको दूं, कितना दूं? We still are in process of paying bank loan and creditor. तो as far as the किसको is concerned, तो वही है bank loan and creditor. The question remains is कितना. We do have okay, so first answer, balance of bank loan and creditor. और कोई उस आंसर को किसी तरह का टक्कर देना चाहता है? Anyone else? कि नहीं नहीं सर मेरे पास स्पेशल आंसर है, आप मेरा आंसर ले लो. Anyone else has got any other brilliant idea? Or can we copy that answer? Balance of bank, loan and creditor. Again, it's a very long silence from your side. Only one answer. बाकी किसी को कोई टिप्पणी देनी नहीं है, कोई ओपिनियन, कोई दूसरा आंसर नहीं तो सेम आंसर अगर ये करेक्ट है तो. ये तो गाड़ी एकदम से ही अटक गई है. आई एम नॉट श्योर कंफ्यूजन क्या है, बट द वन सिंगल आंसर, एक लौता प्यारा आंसर जो आया है वो है तो करेक्ट. क्योंकि वी आर नॉट सपोज टू नाउ पे. आई होप द कमेंट बॉक्स इज नॉट बफरिंग. ओके, कि भाई बाकी का लाइव चल रहा है, कमेंट बॉक्स बफरिंग है. ओके, ऑब्वियसली आई नो दैट इज नॉट हैपनिंग. 30,000 में से आई थिंक देयर टोटल इज अराउंड 8,000. सो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना. पूरा पैसा दे दो, पूरा मतलब 30,000 मत दो, जो उनका टोटल है उतना तो दे दो, मतलब बैलेंस. दैट इज व्हाट द फर्स्ट आंसर वाज ना, व्हिच आई सेड इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट. ओके, सो I am paying the balance of bank loan and creditor. Okay, I was a little bit worried के लोग गए कहाँ पर. 8,000 ये मैजिकल नंबर कहाँ से आया? अरे दोनों का टोटल 5,333 plus 2,667, because we are paying the balance. रेशियो ओनली यूज जब पैसा कम है. जब पैसा ज्यादा है तो मतलब सो टू से ओके अपना बाप का राज है. ओके, क्योंकि अपने पास बाप का बहुत पैसा है, जिसको जो खरीदना है खरीद सकता हूं मैं. ऐसा एटीट्यूड मत रखना, बट जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, यू हैव मनी, सो देयर इज नो नीड टू थिंक what do I buy. You buy the best. Okay, so I will pay their balances and then automatically I will come to know my latest balance. तो इनकम टैक्स तो कब का नील हो गया, बैंक लोन भी नील हो गया, क्रेडिटर भी नील हो गया. My bank is sorry, my cash balance is not nil. हाँ, अभी तक 22,000 है. Now for me, my this page comes to an end, so I'll go to the next page and I will just write the balance brought down. So cash balance 22,000, then income tax, bank loan, creditor nil. वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो कब का नील हो चुका है. संटा सिंह का लोन 11,000 का है. लाल सिंह, संटा सिंह एंड बंटा सिंह का कैपिटल 40, 30.
Okay, I have got 22,000 with me. Any idea इसका हम लोग पार्टी कैसे करें? No, तुम्हें मजाक में बोल रहा था, आई नो आप में से कोई सीरियसली ले लेगा और मेरे को 10 पॉइंट भेजेगा, सर इस तरह हम लोग स्पेंड करेंगे. तो कमिंग टू अकाउंट, स्पेसिफिकली अकाउंट्स, whom do I pay, how much do I pay? 22,000. अपना जेब इतना गर्म है, इसको पैसा दे, कितना पैसा दे? Those of you who disappeared from the comment box, can you please join back? I am not sure कि गए कहाँ पर हो. Okay, one answer, and that one answer says you pay Santa loan, Santa Sing loan in the long form, 11,000. I think, not I think, I should pay it क्योंकि पैसा तो अपने पास ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. $11,000 I'm paying. So I still have cash with me. I repeat, I still have cash with me, which is 11,000. संटा सिंह का लोन टाटा हो चुका है, ओके, वो फ्लाइट लेके अमेरिका चला गया. 11,000 है. आप लोग मेरे साथ में मेरे 11,000 के बैलेंस पे आ जाइए और फिर वही स्टीवन सर को सजेस्ट कीजिए कि अभी ये 11,000 का मैं क्या करूं, किसको पैसे दूं. मतलब उसका मेरे को टेप रिकॉर्डर लगाना पड़ेगा. किसको पैसे दूं, कितने पैसे दूं? 11,000 is in my pocket, is in my tijori right now. The only thing different today was that amount spent for furniture, which you had to deduct at the beginning, and you had income tax payable, which was preferential. Otherwise, the question is okay. It is a little lengthy, but it's okay. So the answer that you give me, now from where do you give me this answer? You give it to me from the excess capital. तो मैं उसका मुंह दिखाई एक बार करा देता हूं. 11,000 है अपने पास. एक्सेस कैपिटल में फर्स्ट किसको देना था? संटा सिंह का 10,000. आराम से, कोई चिंता की बात नहीं है, पूरा 10,000 वन शॉट में हम लोग दे देंगे. सो जस्ट लाइक यू सजेस्ट, विच इज द करेक्ट थिंग टू डू, पेड फॉर संटा सिंह एक्सेस कैपिटल. फर्स्ट पे पूरा 11,000 मत देना. हाँ भाई, इतना दिलदार मत बनना. पैसे के वांदे, पैसे के लाले सबको है, पूरा बचा के रखो और उसको संटा सिंह के कॉलम में लिख दो. अपनी जेब में 1,000, संटा सिंह के अकाउंट में 30,000. सो नाउ आई एंड यू, बोथ ऑफ अस हैव 1,000, ओनली 1,000. फर्स्ट पे फिनितो, ओके, फिनिश. अभी 1,000 का क्या करूं? Should I again repeat? I don't mind doing that. Otherwise, लंबा पॉज आ जाता है. 1,000 इसको पैसे दे, ओके, कितने पैसे दे? So we have 1,000 with us. Same old question. If you can give me an answer. How much do I pay and whom do I pay? That's just me converting Hindi into English, nothing else. Okay, so I have a suggestion कि Santa 500, Banta 500. Now, why is this like said 500, 500? Because it's correct, huh? Everyone, I should say shabash, okay, because you are giving correct answers. तो एक्सेस कैपिटल में देखे तो सेकेंड पे में लिखा है कि संटा सिंह को 10,000, बंटा सिंह को 10,000. अभी उतना तो है नहीं अपने पास, 1,000 है. हाँ, तो 1,000 दोनों को दे दो. 1,000 1,000 नहीं, रेशो में.
and the ratio of Santa Singh and Banta Singh is 1:1, the ratio of Santa Singh and Banta Singh. So here, right in front of your screen, I am showing that to you. 1000 है, थोड़ा पैसा इधर, थोड़ा पैसा उधर, बिकॉज यू हैव टू कीप अ ट्रैक. यू हैव टू कीप अ ट्रैक के एक्सेस कैपिटल का कितना पैसा देना है. ओके, तो वो यहाँ पे हम रखते हैं. लेफ्ट साइड पे 500 दे दो, राइट साइड पे 500 दे दो, एंड राइट हैंड कीप कितना बाकी है, 9500. सो जस्ट कीप, वो मेमोरी में काम आता है, क्योंकि अदरवाइज सम में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है. ओके, तो 1000 का 500 करके हम सेकेंड पे को थोड़ा से पे करेंगे. Paid to Santa Singh and Banta Singh excess capital 1000 and write it 500. Then you can subtract. Orally ही आपको आंसर्स आ जाएगी. अपना जेब नील है. 29,500 संता सिंह का पैसा और बंटा सिंह का 29,500. तो अपना जेब अगर नील हो गया तो फिर मुझे आपको क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा कि क्वेश्चन में अभी कितना पैसा आने वाला है, क्योंकि ये लास्ट रियलाइजेशन है. सभी लोग, ये लास्ट रियलाइजेशन है. ओके, द हाईलाइटेड पार्ट दैट इन मे, नॉट मे में पक्का, नॉट मे में पक्का 35,000. in fact this is the highest amount that we are getting, 35,000. so let me write fifth realization 35,000. now I'll not ask you but I will show you whom do I pay. you see second पे अभी तक बाकी है. I think if I recall correctly we had to pay 9,500. So is it okay, everyone, is it okay if I pay Santa Singh 9,500 and Banta Singh 9,500? चलेगा? आप लोग क्या बोलते हो? बिकॉज सेकेंड पे जितना मुझे याद है बाकी था. डू यू हैव एनी अदर विचार अबाउट दिस? नो. अच्छा, फर्स्ट आंसर आ गया. एंड सेकेंड आंसर इज अनस्पेंट रियलाइजेशन, विच इज करेक्ट फॉर द रिमेनिंग पब्लिक. रिमेनिंग पब्लिक एकदम सही आंसर दिया, याद रख के आंसर दिया, क्योंकि ये लास्ट रियलाइजेशन है ना, ये लास्ट सीन है. इसके बाद पर्दा बंद हो जाएगा. तो सम का आपको मैं चेहरा दिखा देता हूं. आपने स्टार्ट में 2,000 रुपया अलग रखा था और खर्चा किया एक्चुअल सिर्फ 1,500. मतलब 500 अनस्पेंट, जो वर्ड यूज किया ना अभी अनस्पेंट, वो लेके आओ. खर्चा मत करो, वो लेके आओ. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग, लेके आ रहे हैं. हमेशा तुम्हारा कोई भी लेवल हो, फर्स्ट पे, सेकेंड पे, फर्स्ट रियलाइजेशन, सेकेंड, हमेशा ना रियलाइजेशन एक्सपेंस को पहले प्रायोरिटी देना, उसके बाद अपना नॉर्मल जीवन कंटिन्यू करना. उसके बाद तो पहले मैं वो 500 रुपीज को लाता हूं बॉट बैक, तो एक्चुअली मेरा जो बैलेंस है वो 35,500 है. 35,500. Now I continued, I use these words. अभी you continue with your life. Now you continue with what you were doing. पहले ये चीज जो अलग है इमरजेंसी, तो उसको अटेंड कर और फिर आगे जा. हाँ, अभी ऐसे इमरजेंसीज आने वाले सम्स में काफी बार हो गए. हाँ, इमरजेंसी इज समथिंग यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, बट हैंडल तो करना पड़ेगा. ओके, now I will go to second pay once again and I will show you that particular screen. I still have to give 9,500. Can I? आराम से. I think you have got 35,500. ये दोनों का टोटल कुछ 19,000, 19,000. तो आप दे दो. दोनों को मत दो, दोनों को जो बैलेंस है उतना दे दो. 9,500. अभी ये सेकेंड पे नील,
तो 19,000 आपको देना है, 19,000. We are clearing the second pay. To Santa I will give 9,500, to Bunta I will give 9,500, and then I will update my balance. So अपना जेब में पैसा है 16,500 एंड संटा, अच्छा, लाल सिंह का 40,000 क्यों लिखा है? क्योंकि नाउ संटा का है 20, बंटा का है 20, तो अभी रेशियो में आ गया 2:1:1. Actually 4:2:2, but which is obviously 2:1:1. So when first pay, second pay gets over, you have to pay all partners 2:1:1. So let me do that. Paid to all partners. Can you in the comment box quickly type how much is 16,500 ka 2:1:1? How much is 16,500 ka 2:1:1? Okay, waiting for the division of 16,500 as and when I get the answer, and assuming it is the correct answer, I will take the story ahead. So first answer is come. I'll read it out. Obviously it is visible to all of you. 8,250, 4,125, 4,125. So कोई कंप्लेन नहीं कर रहा मैं, क्योंकि लिखना तो वही है, और फिर माइनस करके आपको लास्ट के जो बचे कुछ अमाउंट है वो लिखने हैं. तो अपना जेब में तो नील हो जाता है अपना जेब, पर लाल सिंह को अभी तक हमने 31,750 बिग अमाउंट अब तक दिया नहीं. संटा सिंह को हमने 15,875 नहीं दिया, एंड ऑल्सो बंटा सिंह, बिकॉज यू कुड नॉट पे these amounts determine your answer, which is loss on realization. When you have written, understood is a different thing. Written, can you please write done? So I will take you to the homework question, which I am partly solving for you. I require the word done, which will allow me to go ahead to the part classwork question and part homework question. Okay, it's time that I take this to a homework question. This is how it looks. Blossom, Cinderella, and Diana are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:4:3. अब ये क्वेश्चन आपको गूगल क्लासरूम में भी थोड़े टाइम में मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट. आप हमेशा उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. And they decided to dissolve their business on and from 1st January 2020. The following was their balance sheet. So first is the balance sheet. Capital account है 60-40, 50-40. जनरल रिजर्व है जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सिंड्रेला लोन, ब्लॉसम लोन, ये दोनों लोन इज टुगेदर. प्लीज नोट, डोंट से नो सर यू डिड डिफरेंट टुडे. दैट वाज एक्सटर्नल लोन, इंटरनल लोन. ये दोनों तो इंटरनल है ना, दोनों लोग पार्टनर्स हैं, तो इंटरनल लोन है ये. ओके, तो ये दोनों साथ में. क्रेडिटर अलग. राइट नाउ विथ टू आइटम्स, and which are those two items? Capital and general reserve. 60, 50, 40 and 30,000.
let me with you solve the excess capital together, huh? So I'll be with you, okay, I will be with you, please be with me. बाकी पूरा रामायण में बाद में पढ़ूंगा, बाकी का हिंट बाद में दूंगा, पहले इतने से फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे मैं आपके लिए लेके आ जाता हूं। तो स्टार्ट करता हूं मैं। पहले बैलेंस शीट का कैपिटल मैं लिख देता हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन दिखता नहीं है ना, तो आपकी भी गाड़ी अटकती होगी। 60,000, 50,000, इसमें जनरल रिजर्व का तड़का मारना है और वो हमको ऐड करना है। 30,000 और उनका रेशो था 5:4:3, 30,000, 5:4:3। So you get 12,500, 10,000, 7,500। अभी ऐड करूंगा तो आएगा adjusted capital। एवरीवन ऐड करूंगा, I will get adjusted capital। Let me write that. I'll wait for a few seconds after that, so that you can also catch your breath and you can come and join me. We did have last time, I think so, drawings, वो माइनस किया था हमने, तो आज तो नहीं है, so no need to worry। 72,500 ये adjusted capital है। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेटमेंट में यही आएगा, ओरिजिनल कैपिटल मत लिखना। अभी ABCD स्टार्ट हो जाएगा। I'm waiting for a few seconds so that if I went a little fast, you join me. ओके, मूविंग ऑन। इसके बाद आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, विच इज 5:4:3, and unit capital, which is the division। डायना का राउंड ऑफ करके 15,833, दैट्स इन डेसिमल्स, बट कोई बड़ा बवाल नहीं है, वो अब राउंड ऑफ करके लिख लो। सो नाउ यू विल गेट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, बट उसके पहले जो यूनिट कैपिटल क्यूट लुकिंग छोटा सा था, जो था ब्लॉसम का, उसको आप सर्कल में डालो और फिर उसमें से धनुष बाण, तीर, जो भी है, मल्टीप्लीकेशन का, तो इंटू 5 करोगे तो 72,500 आएगा, इंटू 4 करोगे तो 58,000, इंटू 3 करोगे तो 43,500। नाउ टू गेट excess capital, please subtract the A capital minus the D for donkey capital। First person nil, that is Blossom। Cinderella, okay, मतलब Cinderella के पास अब तक पैसा है 2,000 and 4,000। Now we continue with the same story। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ब्लॉसम का कुछ नहीं है, वहां पे आप BMC का जो आता है ना नोटिस, एंट्री मत करो, क्रॉस मार्क। 4:3, यूनिट कैपिटल, a division। If I get it in decimals, no problems, I will round it off। 1,333, again डायना is little नक्छड़ी, उसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता। तो अभी सिंड्रेला, ओके, हर कैपिटल इज द क्यूट लुकिंग कैपिटल, so you will use that for multiplication। Okay, the wordings unfortunately are not correct, it should be
taking Cinderella capital, unit capital as base. So please note that आप सही से लिखो अगर आप वो लिखते हो. ओके, मैंने वो नोटिस तो नहीं किया है, बट अगर आप लिखते हो तो taking Cinderella capital as base, देन उसको लेके मल्टीप्लाई करना. Okay, on multiplication, okay, on multiplication, you will get the proportionate capital. I'm just taking up the time so that the edit can work out, and then accordingly अपनी कहानी आगे जा सकती है. You can write after you get the last line the ultimate excess, first pay, second pay, third pay. Always continuously मत लिखना फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड थर्ड के बीच. एटलीस्ट कीप 3 लाइन्स. ओके, यू नेवर नो कि कब काम आता है. ओके, कुछ पता नहीं है. काम आ जाता है, जब आ जाएगा तो फिर हो सकेगा. ओके, सो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन. देन आपको फर्स्ट पे, सेकेंड पे, थर्ड पे आना चाहिए. सो जिसके नखरे सबसे ज्यादा थे उसका ही सबसे ज्यादा एक्सेस कैपिटल आया है. तो फर्स्ट पे डायना टू 500, सेकेंड पे सिंड्रेला एंड डायना 2000 and 1500. Third pay all partners. If you have done this 2 minutes back or now, वापस से रिपीट कर दो डन. वापस से रिपीट कर दो डन. सो आई विल टेक यू बैक टू द क्वेश्चन. एक्सेस कैपिटल तो आ गया. पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन आपका ड्यूटी है, बट उसके पहले मैं इक्का दुक्का पॉइंट आपको याद दिला देता हूं. Please finish that. Okay, great. चलो, let me quickly give you the sequence कि पेमेंट में ना पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन. So this is the sequence, everybody. आपको पहले 3 कैपिटल है, वो हमेशा लास्ट में आते हैं. जनरलिज्म नहीं आता. ये दोनों इंटरनल लोन है, तो ये दोनों साथ में आएंगे. क्रेडिटर इकलौता बाहर का है, एनआरआई बाहर से आया है. सो पेमेंट में पहले क्रेडिटर, दोनों लोन क्योंकि ये पार्टनर्स के लोन है. 2 जनरल रिजर्व नो, एंड ऑल द 3 पार्टनर्स. हाँ, प्लीज डोंट राइट 60, 50, 40. हाँ, डोंट. एक्सेस कैपिटल में जो है एडजस्टेड कैपिटल वो लिखना. मैंने सिर्फ सीक्वेंस दिया है. नाउ गोइंग अहेड, कैश इज 16,000. देन याद रखना द एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलो. देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट. हाँ, बहुत लंबा. जनवरी 18, फेब 1, फेब 12, फेब 18, मार्च 1, मार्च 15th एंड 31st इज द लास्ट. नाउ थोड़ी चर्चा आगे. फेब 18th, ऑन फेब 18, प्लीज नोटा इधर भी फेब 18th है. तुमने कुछ बेचा है, 14,000 मिला है. अभी यहाँ पे उन्हें वापस से बोल रहे. मोटर कार वॉज टेकन ओवर बाय ब्लॉसम एट एन अग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 30,000. व्हेन ब्लॉसम और एनी पार्टनर टेक्स ओवर एनी एसेट, इज इट फुकट का, फ्री? बिल्कुल नहीं. इवन दो वो फैमिली वाला है, उसको फ्री का नहीं देना. सो व्हाट डू यू हैव टू रिमेंबर एवरीवन?
आपको याद क्या रखना है कि ये दोनों डेट जुड़े हुए हैं। प्लीज नोट, ये दोनों डेट जुड़े हुए हैं। फेब 18 को आपको टोटल पैसा कितना मिलेगा? रियलाइज्ड से आपको 14,000 और ब्लॉसम जो मोटर कार लेके गई है वो 30,000 देगी। तो फेब 18 को प्लीज कृपया ध्यान दे, आपको दो अमाउंट लिखने हैं, अलग अलग नहीं, टुगेदर। पहले लिखना रियलाइज्ड 14,000, आई थिंक सो फोर्थ रियलाइजेशन, उसी के नीचे प्लस मोटर कार टेकन बाय ब्लॉसम 30,000. So 14 and 30 will become 44. Then you continue the distribution. Okay, I hope Feb 18th को, not Feb 14th को, Feb 14th को दूसरा कार्य होता है। ओके, वो मैं नहीं डिस्कस कर रहा। Feb 18 को क्या करना है आपको? ओके, 14,000 प्लस 30,000, 44,000। ओके, आगे कुछ दिया है? Dissolution expenses were provided for 1,500. When do you do this? At the beginning, from the 16,000. Okay, but actual was 1,200. तो 300 बचेगा ना, तो जब तुम 31 मार्च को आओगे ना, 23,500 के अंदर आपको वो 300 रुपीज ऐड करना है। सो I am hoping that this part that I have explained to you, two things, sequence मैंने दे दिया आपको so that no you don't do any गड़बड़। I told you Feb 18th को आपको किस तरह react करना है, and on cash in hand 16,000 से please remember to remove kept aside 1,500, you're spending 1,200, so you have 300 left with you, please उसको लेकर आना। ओके, जस्ट टू गेट अ क्लैरिफिकेशन, कैन यू प्लीज, अगर समझा तो अंडरस्टूड लिख लो। एवरीवन अंडरस्टूड लिख लो। ओके, ओनली अ फ्यू, आई थिंक नॉट इवन मिनट्स, a few more seconds and we should be done with. Do keep in mind the request and the reminder about the admissions. Okay, admissions for all the standards, for admissions for all the standards, for accountancy subject, even for your 14th standard. Normal lectures are going on आपका, कोई उसमें फेरबदल नहीं है। हाँ, the only गड़बड़ that happens is कभी कभार, I do understand it does start a bit late. अब क्या करना है? कुछ नहीं है, आपको काम मैंने बता दिया है, ये प्लीज सॉल्व करना। पीसमेल स्टेटमेंट जो है, ये क्वेश्चन जो है थोड़े टाइम में, आई डू अंडरस्टैंड क्लासरूम में भी थोड़ा कुछ पंगा हो गया था, बट ये क्वेश्चन क्लासरूम में मैं अपलोड करा देता हूँ, वो अवेलेबल होगा आपके लिए, आप वहां से देख के सॉल्व कर सकते हो। अब करना क्या है? कुछ नहीं, आई एम नॉट श्योर उसका टाइम बीत गया है कि नहीं, बट येस, हैव अ नाइस कप ऑफ कॉफी, बिकॉज काफी मैंने आपको थका दिया है। Whatever is the remaining part of the day, have a good day. If after this entire chaos is over, you have understood the explanation, the like button is always okay, दबाने के लिए ready. सब्सक्राइब का इंफॉर्मेशन बाकी लोगों को आप डेफिनेटली दे देना। ओके, यू हैव अ वंडरफुल रिमेनिंग डे ahead. Please take care of yourself, take care of your seniors and your juniors. Okay, God bless you. Good day.